اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمیر خان یوسف زئی۔ آج کے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں میٹاپورس کیوں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میٹاپورس کو سکیم سمجھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے یہ غلط غلط خبریں پھیلا رہے ہیں مارکیٹ میں کہ میٹاپورس جو ہے وہ مسٹر لاڈو نے صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ بیسیکلی یہ باتیں صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے ان چیزوں کا۔ ڈی سینٹرلائزیشن اور سینٹرلائزیشن میں ان لوگوں کو فرق کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا چھوٹے سے چھوٹا بھی جو آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے کلیئر کر دوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فورساج کے اوپر اور پھر میٹاپورس کے اوپر۔ فورساج تقریباً 2.5 سال سے مارکیٹ میں کام کر رہا ہے اور ایک لائف چینجر ہے۔ ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے غلط نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم فورساج کو غلط کہیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارا جو سسٹم ہے میٹاپورس پھر یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اگر میٹاپورس کو آپ لوگ فورساج کا اپڈیٹڈ ورژن کہو تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ وہ اپنے جگہ پہ ہے، یہ اپنے جگہ پہ ہے، لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے فورس کو اسٹڈی نہیں کیا اور وہ پھر فورس کے خلاف اس طرح کی نگیٹیو باتیں کرتے ہیں کہ فورس اسکیم ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ پھر غلط بات ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی نہ کوئی بندہ اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے تو کائنڈلی آپ لوگ اس کو یہ ویڈیو لازم شیئر کر دیں کہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ پھر کسی کو غلط گائیڈ نہ کریں۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے، سسٹم جب بنایا جاتا ہے تو سسٹم کا ایک ڈیولپر ہوتا ہے جس نے سسٹم کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک بندہ نہیں ہوتا، اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے۔ لیکن جو ڈیولپر ہوتا ہے، آئی ڈی نمبر 1 ہمیشہ اس ڈیولپر کی ہوتی ہے۔ جتنے بھی ڈی سینٹرلائز کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں ڈیولپر ہمیشہ آئی ڈی نمبر 1 کے ساتھ ہی سسٹم میں انٹر ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ جب سسٹم لانچ ہو جاتا ہے، لانچنگ کے بعد آئی ڈی نمبر 1 کی ہی مارکیٹنگ ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے تو بولی بھی لگ جاتی ہے۔ تقریباً 1 سے لے کے 10 آئی ڈی تک یا 15-20 تک یہ لوگ جو بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی نارمل سی بات ہے ہر ایک کانٹریکٹ کے لیے، کیونکہ بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں، وہ پیسہ لگا کے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیسے کے پیچھے ہی وہ پیسہ کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں صرف اور صرف یہ کرنے کے لیے کہ ہمیں سسٹم سے نان ورکنگ انکم آئے گا۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ لوگ فرساج دیکھ لو تو آئی ڈی نمبر 1 بھی مسٹر لاڈو کی ہے، اور یہاں بھی میٹاپورس میں آپ لوگ دیکھ لو تو یہاں بھی آئی ڈی نمبر 1 جو ہے وہ مسٹر لاڈو کی ہے۔ اب مارکیٹنگ پلان کے حساب سے اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو فورساج میں بھی اس کو 3 کا جو لیول ہوتے ہیں اس کو X3 بولتے ہیں اور اس کو X4 بولتے ہیں۔ یہاں میٹاپورس میں ایک کو S3 بولتے ہیں، ایک کو S6 بولتے ہیں۔ ہم بیسیکلی خود میں ایک 2.5 سال سے فورساج کمیونٹی کا ایک ممبر ہوں۔ پہلے ہم ایتھیریم پہ کام کر رہے تھے، پھر ٹرون پہ کام کر رہے تھے، پھر فورساج BUSD پہ کر رہے تھے۔ اب جب میٹاپورس آ گیا ہم نے اس کو سٹڈی کر لیا، یہ ہمیں فورساج سے کچھ زیادہ بہتر لگ گیا، تو اسی وجہ سے ہم یہاں موو کر گئے۔ اب ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے آج۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فورساج میں، تو فورساج میں آپ لوگوں کے نیچے جو ایکسپور کا سٹرکچر ہوتا ہے، یہ یہاں پہ یہ S6 ہے، لیکن مان لیتے ہیں ہم اس کو ایکسپور کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا کہ ہر ایک بندے کو کلیئر ہو جائے، اگر فورساج کے لیڈرز بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کو بھی یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ جب یہ 6 کا سٹرکچر ہوتا ہے آپ لوگوں کے نیچے، تو اس 6 کا سٹرکچر میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف 3 بندوں کا پیسہ آتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کے پہلے یہ پوزیشن پہ کوئی بندہ لگ جاتا ہے تو اس کا پیسہ آپ لوگوں کے پاس نہیں آتا، اس کا پیسہ یا تو آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس جاتا ہے یا ٹیم میں کسی اور بندے کو
آپ کے अप्लाइनर के टीम में किसी और बंदे को नॉन वर्किंग के मद में चला जाता है। और यहाँ पे भी अगर आप लोगों का कोई बंदा लग जाता है तो ये पैसा भी आप लोगों का नहीं होता, या तो आप लोगों के अप्लाइनर के पास चला जाता है या अप्लाइनर के टीम में किसी और बंदे के पास जाता है, जो आप लोगों के क्रॉस लाइन कहा जाता है। फिर उसके बाद ये पोजीशन होता है पोजीशन नंबर 3। यहाँ पे भी कोई मेंबर लग जाता है, जितने का लेवल होता है वो पूरा पैसा आप लोगों के पास आता है। यहाँ पे जब आप लोगों के नीचे कोई मेंबर लग जाता है तो ये पैसा भी पूरा का पूरा आप लोगों के वॉलेट में आता है। यहाँ पे अगर कोई बंदा लग जाता है, यहाँ का पैसा भी आप लोगों का पूरा का पूरा आप लोगों के वॉलेट में आता है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट वाला पोजीशन, छठा जो पोजीशन होता है, यहाँ पे अगर कोई मेंबर लग जाता है तो इसका पैसा आप लोगों का नहीं होता, ये चला जाता है आप लोगों के अप्लाइनर के पास। और अप्लाइनर के नीचे आप लोगों का जो एक मर्तबा फिर पोजीशन लग जाती है और ये पूरा लेवल आप लोगों का एक सर्कल कंप्लीट कर देता है, खाली हो जाता है। अब ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने समझना है। अब हम बात करेंगे आईडी नंबर 1 के ऊपर। जो सिस्टम का डेवलपर होता है, फोरसाज के मेंबर ये कह रहे हैं कि मिस्टर लाडो ने मेटापोर्स इसलिए बनाया है कि वो यहाँ ज्यादा पैसा ले ले। चलो हम मान लेते हैं, उनकी बात भी हम मान लेते हैं कि चलो मिस्टर लाडो ने ये सिस्टम अपने फायदे के लिए बनाया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फोरसाज पे जितने भी लोग काम करते हैं उनको आज तक ये पता नहीं होगा, लेकिन ये मैं उनको बता देता हूँ, मुझे जो अपने एक्सपीरियंस है ये मैं उनको बता देता हूँ। आईडी नंबर 1 का कोई अप्लाइनर नहीं है फोरसाज में, तो आईडी नंबर 1 का ये वाला पैसा, ये वाला पैसा और ये वाला पैसा, ये किसके पास जाता है? ये किसी के पास भी ये सवाल का जवाब नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आईडी नंबर 1 के नीचे इस पोजीशन पे कोई भी बंदा लगता है तो आईडी नंबर 1 का तो कोई अप्लाइनर होता ही नहीं है, ये पैसा रिवर्स करके आईडी नंबर 1 के पास आता है। यहाँ पे भी कोई मेंबर लग जाता है, ठीक है, वो भी रिवर्स होके आईडी नंबर 1 के पास आता है। पोजीशन नंबर 6 पे भी कोई बंदा लग जाता है, उसका पैसा भी आईडी नंबर 1 के पास आ जाता है। ठीक हो गया। और ये तीनों का पैसा तो वैसे भी हर एक बंदे को जब हमारे पास आता है तो आईडी नंबर 1 के पास भी ये पैसा चला जाता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि फोरसाज में आईडी नंबर 1 जो है वो 6 बंदों का पैसा ले रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ ये जो ग्रीन मैंने कर दिए इन 3 बंदों का पैसा ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर दिया, मेटापोर्स में जो फोरसाज के लीडर्स जिनके पास नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, वो सिस्टम को उल्टा बता रहे हैं। फोरसाज को मेटाफोर्स बता रहे हैं और मेटाफोर्स को फोरसाज बता रहे हैं। यहाँ पे मेटाफोर्स में उसने क्या कर दिया, आईडी नंबर 1 को हमारा इक्वल पार्टनर बना दिया। इक्वल पार्टनर से मतलब ये हो गया कि आईडी नंबर 1 भी हमारे तरह सिर्फ और सिर्फ 3 बंदों का पैसा लेगा। ऊपर का जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, इन 3 बंदों का पैसा आईडी नंबर 1 के ऊपर एक अप्लाइनर बैठा है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो पैसा इधर जाएगा, उसी में स्टोर होगा, ठीक हो गया। और ये स्टोर हुआ पैसा आगे जो सिस्टम में एनएफटीज आने वाली है, ये इस एनएफटीज में खर्च होगा और वहां से रॉयल्टी बोनस बन के जितने भी लीडर्स यहाँ पे काम करेंगे उनको शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। किसी को 10% मिलेगा, किसी को 11% मिलेगा, मतलब 10 से लेके 25% लोगों को यहाँ से शेयर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे इन लोगों का ये तासुर गलत हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर लाडो ने यहाँ से पैसा अपने लिए ज्यादा कमाने के लिए ये सिस्टम बनाया था, तो उसको प्यारे भाइयों जब यहाँ से वो 6 बंदों का पैसा ले रहा था तो यहाँ से भी वो 6 बंदों का पैसा ले सकता था ना।
तो उसको 3 बंदों का पैसा ऊपर ले जाने की क्या जरूरत थी कि प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो 3 बंदों का एक्स्ट्रा पैसा रख रहा है। सीधा सीधा हिसाब कर लेता वो, यहाँ से भी 6 बंदों का पैसा ले रहा था, तो यहाँ से भी सीधा सीधा वो 6 बंदों का पैसा ले रहा। तो यहाँ से 3 बंदों का पैसा वो क्यों प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में लेके जा रहे हैं? प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए लेके जा रहे हैं कि आगे जो एनएफटीज आएगी उसका जो रॉयल्टी बोनस आएगा, ये एक्स्ट्रा पैसा उसी में लगेगा। उसी में लग के जितने भी यहाँ पे लीडर्स काम करेंगे उनको पैसिव इनकम मिलेगी यहाँ से। तो ये चीज है, असल में वो इस चीज के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, तो वो उल्टा बता रहे हैं। चलो हम यहाँ पे भी मान लेते हैं कि मिस्टर लाडो ने ये सिस्टम जो है अपने फायदे के लिए बनाया है। तो यहाँ पे क्या फायदा कर दिया मिस्टर लाडो ने? यहाँ भी 6 बंदों का पैसा ले रहा था। अगर ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का पैसा है, ये अगर मिस्टर लाडो हमें नहीं दे रहा, जस्ट सपोज पुरसाज वाले सच कह रहे हैं, ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मिस्टर लाडो हमें नहीं दे रहा, ठीक है, तो यहाँ भी तो 6 बंदों का पैसा जाएगा ना। यहाँ पे हमारा पैसा तो नहीं जा रहा, यहाँ पे इसी पोजीशन का पैसा जा रहा है, इसी पोजीशन का पैसा जा रहा है और इसी पोजीशन का पैसा जा रहा है। अगर इन 3 पोजीशंस का पैसा भी यहाँ आके स्टोर हो जाता है, तो फिर भी फुरसाज की तरह मिस्टर लाडो 6 बंदों का पैसा लेगा हमसे। तो ये तासुर यहाँ पे उन लोगों का गलत हो जाता है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा उन लोगों को कि आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर दो, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेटाफोर्स नहीं करना, आप लोग बेशक मेटाफोर्स ना करो, लेकिन आप लोग दूसरों को ना गलत गाइड ना किया करो। कम से कम हम देखो फरसाज को गलत नहीं कह सकते, अगर हम उसको गलत कहेंगे हमारा सिस्टम गलत हो जाएगा। और दूसरा ये है, वो ये कह रहे हैं ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज है। तो इसके लिए अगर उनके पास कोई दलील है, वो दलील सामने लेके आए, वो डिबेट करने के लिए आ जाए, हम सामने बैठ जाएंगे, डिबेट कर लेंगे कि वो किस बेस पे इसको सेंट्रलाइज कह रहे हैं और फुरसाज को डिसेंट्रलाइज कह रहे हैं। ये तो हर एक छोटे छोटे से छोटे बच्चे को भी अगर आप लोग बता दोगे कि एक बंदा है मिसाल के तौर पर, उसने एक कंपनी बनाई है, ठीक है, कोई भी कंपनी ले लो, साबुन बनाने की एक कंपनी एक बंदे ने बना ली, ठीक है, और वही सेम बंदा जो है उसने फिर शैम्पू बनाने की कंपनी बनाई। अब पहले जो साबुन बनाने की कंपनी वो चला रहा था, वहां पे लोग अच्छे खासे काम कर रहे थे। फिर शैम्पू बनाने की कंपनी उसने बना ली, वहां पे भी लोग आना शुरू हो गए। फिर उसने क्या कर दिया, जो शैम्पू बनाने वाली कंपनी थी वहां पे उसने फ्रॉड कर दिया, उस पे फ्रॉड कर दिया उसने। तो क्या हो गया, फ्रॉड इसलिए उसने कर दिया, ये लोग ये कह रहे हैं कि उसने अपने फायदे के लिए, तो अगर मिसाल के तौर पर अगर वो शैम्पू बनाने वाली कंपनी से वो फ्रॉड करेगा, तो क्या ये जो साबुन वाली कंपनी उसने बनाई है वहां पे क्या लोग ट्रस्ट करेंगे? वहां पे कस्टमर आएंगे, लोग तो ये कहेंगे कि भाई उसने शैम्पू के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड किया है, तो ये साबुन के नाम पे भी अनकरीब कर लेगा वो। तो यहाँ पे उन लोगों का पता नहीं अकल क्यों काम नहीं करता कि एक तरफ से वो कह रहे हैं कि मिस्टर लाडो ने बनाया है, ठीक है, और दूसरी तरफ उस सिस्टम के ओनर को वो लोग गलत कह रहे हैं कि नहीं ये उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया है। अगर पोर्स उसने अपने फायदे के लिए बनाया है, इसको सेंट्रलाइज बनाया है, ठीक है, कल को फोर्स बंद हो जाता है, जैसे आप लोग कह देते हो फोर्स सेंट्रलाइज है, स्कैम कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो क्या फोर्साज पे लोग ट्रस्ट करेंगे फिर? ये कोई एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सालों साल चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कभी बंद नहीं होता, जब तक दुनिया में मोबाइल फोन होगा, जब तक दुनिया में इंटरनेट होगा, ये सिस्टम आप लोगों के लिए काम करता रहेगा। बस सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि आप लोगों के पास जो नॉलेज नहीं है, कम से कम आप लोग नॉलेज ले लो। कम से कम ये सिस्टम जो आप लोगों के सामने मैंने पेज ओपन किया हुआ है, ये पीडीएफ फाइल है, ये आप लोग 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा स्टडी कर सकते हो। 1 घंटे के अंदर आप लोग इस सिस्टम को पूरा स्टडी कर लो। अगर आपको ये फोरसाज से बेस्ट ना लगा, तो फिर आप लोग बता देना कि भाई आप झूठ बोल रहे थे। मैं 2.5 साल से पुरसाज कर रहा था, मैं मेटापोर्स पे क्यों आ गया? मैं मेटापोर्स पे इसलिए आ गया कि मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे मेन मेन चीजें क्या है। फोरसाज में आप लोगों को पता होगा, जब भी आप लोगों का कोई भी लेवल रिसाइकल हो जाता है, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ, मान लेते हैं
ये फुर्सा आज है आप लोगों के सामने, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हर एक बंदा अपने आप को ले लो, आपका ये लेवल भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, 5 लेवल आपके ओपन है। अब मिसाल के तौर पर ये पहला लेवल है, यहां से आपको बार बार इनकम आती रहेगी फॉर लाइफ टाइम। यहां से भी आपको बार बार इनकम आती रहेगी फॉर लाइफ टाइम। यहां से भी आती रहेगी बार बार इनकम फॉर लाइफ टाइम। यहां से भी आती रहेगी इनकम फॉर लाइफ टाइम। अब 5वें लेवल की बात करते हैं। अब ये 5वें लेवल से आपको एक मर्तबा 3 बंदों की पेमेंट आ जाएगी। ठीक हो गया, 3 बंदों की पेमेंट आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पर अगर ये 5वां लेवल, ठीक है, मान लेते हैं ये 5वां लेवल आप लोगों का $80 का है। ठीक हो गया, $80 का है, तो आपको 3 बंदों से 80, 80 और 80 आ गए। ठीक हो गया, ये टोटल मिला के कितने हो गए? 80, 80 और 80, 160, तो 240 हो गया। 240 आपके पास आ गया। अब अगला लेवल, 80 का अगला लेवल होगा 160। ठीक हो गया। अब इसमें से आपने 160 लगा के अगला वाला लेवल एक्टिवेट करना होगा। 80 आपके पास वॉलेट में रह जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा 160 वाला लेवल एक्टिवेट नहीं करता, ठीक है, और उसका ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया, तो उसको लेवल 5 से लाइफ टाइम के लिए इनकम आना बंद हो जाएगी। मेंबर बेशक ये लगाए, इसके टीम के मेंबर जो भी लगाए, लेकिन ये पैसा उसके पास नहीं आएगा। मेंबर यहाँ पे लगेगा उसके नीचे, लेकिन इसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, और उसका पैसा जाएगा उसके अप्लाइनर के पास एज ए गिफ्ट, क्योंकि उसका ये वाला लेवल रिसाइकल हो गया था, उसने अगला वाला लेवल एक्टिवेट नहीं किया, तो ये फ्रीज हो गया है। फ्रीज से मतलब है अब यहाँ पे उसको कोई भी इनकम नहीं आएगी। अब मेटापोर्स क्यों जबरदस्त है? इसलिए जबरदस्त है कि यहाँ पे ऑटो अपग्रेड है। वहां पे आपको मैनुअली करना था, हिसाब वही है, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर 5वां लेवल $80 का है। ठीक हो गया। अब यहाँ के फायदे का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जब 5वें लेवल पे आप पहुंच गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको एक बंदे से $80 आ गए। ठीक हो गया, ये $80 सीधा आपके वॉलेट में आ गए। अब यहां से जो दूसरा बंदा लग गया, इसका $80 स्टोर हो गया। ठीक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर हो गया अगले लेवल के ऑटो अपग्रेड के लिए। इसके साथ जैसे ही दूसरा $80 लग गया, ठीक हो गया, दूसरे बंदे का भी $80 आ गया। अब ये 80 और 80 मिला के 160 हो गए। इसने फौरन आपका ये अगला वाला लेवल ऑटो अपग्रेड कर दिया। इसमें ये फायदे हैं, यहाँ पे किसी की इनकम रुकती नहीं है, किसी की भी इनकम नहीं रुकती। यहाँ पे लोग लेवल 1 से शुरू हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद गायब हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद उनका मैसेज आ जाता है, सर जी ये क्या हो गया है, मैं लेवल 1 से एक्टिवेट किया था, अब मैंने चेक कर दिया मेरे 3 लेवल एक्टिव है, ये कैसे हो गया? तो प्यारे भाई, यहाँ पे आप लोगों को पता है सिस्टम एक छोटा सा सिस्टम है, 12 लेवल्स है। लेवल 1 से शुरू है, इस तरीके से लेवल 3, फिर लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, 10, 11, 12, इस तरीके से सीक्वेंस में सब ने ये लेवल्स करने हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैट्रिक्स है, तो इन छोटे मैट्रिक्स की वजह से यहाँ पे रश भी बहुत ज्यादा है, और लोगों के लेवल्स भी बार बार रिसाइकल हो जाते हैं, और लोगों को नॉन वर्किंग इनकम भी बहुत ज्यादा मिलता है। फुरसाज में क्या होता था, कोई बंदा X3 का लेवल ओपन करता था, तो कोई X4 का लेवल ओपन करता था। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, वहां पे 12 और 12, 24 लेवल थे। X3 के लिए अलग से पैसे भरने होते थे, X4 के लिए अलग से पैसे भरने होते थे। यहाँ पे वो सारा झंझट उसने खत्म कर दिया, इसको एडवांस बनाया, ऑटो अपग्रेड का सिस्टम बना दिया, और ऑटो अपग्रेड के सिस्टम के अलावा इसको 12 लेवल्स का कर दिया, बहुत छोटा, जिसमें उसने X3 और X4 को एक साथ मिला लिया कि लेवल 1
के बाद लेवल 2 हर एक बंदा करेगा, लेवल 2 के बाद लेवल 3 हर एक बंदा करेगा, लेवल 3 के बाद लेवल 4 करेगा, लेवल 4 के बाद लेवल 5 और फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12। बीच में कोई भी बंदा किसी लेवल को छोड़ नहीं सकता। फुरसाज में लोग क्या करते थे, लॉग इन होने के बाद X3 का 1-2 लेवल करने के बाद फिर सारे लेवल्स वो या तो X4 का करता था, या X4 का छोड़ के सारे लेवल वो X3 का करता था। इस तरीके से अपलाइनर्स जितने भी थे वो बेचारे परेशान रो रहे थे, हमारे डाउन लाइन में कोई बंदा काम ही नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। वो सारे झंझट को मैंने देख लिया, जब इसको सिस्टम को मैंने देख लिया तो मैं यहाँ पे इसलिए शिफ्ट हो गया क्योंकि एक तो सिस्टम बहुत छोटा है, दूसरा इसमें ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन है। यहाँ पे आपकी कोई लेवल फ्रीज नहीं होती कि आपका एक लेवल रिसाइकल हो गया उसके बाद आपके डाउन लाइन में लोग काम कर रहे हैं, काम करने के बाद सारा पैसा जो है वो आपका अप्लाइनर लेके जाता है। तो यहाँ पे वो झंझट भी नहीं है, पूरा का पूरा जिस तरीके से फुरसाज में 100% पैसा आप लोगों के वॉलेट में उसी टाइम आ जाता है, यहाँ भी 100% पैसा उसी टाइम आप लोगों के वॉलेट में आ जाता है। ये डिसेंट्रलाइज है, फुली डिसेंट्रलाइज है, पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन है, हाथ के हाथ आप लोग यहाँ से पैसा निकालो, जितना मर्जी कमाओ इस तरीके से। दूसरा, फुरसाज में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टीम बना के इनकम होती है, डायरेक्ट मेंबर लगाओगे उससे आप लोगों को इनकम होगी, वो मेंबर आगे किसी मेंबर को करेगा उसको टीम वर्क बोलते हैं, उससे आप लोगों को इनकम होगी। मतलब फुरसाज में आप नेटवर्किंग करोगे तो पैसा कमा सकोगे, जिस टीम में आपने ज्वाइन किया है वो वर्किंग करेंगे तो पैसा कमाओगे, अदरवाइज कोई चांस नहीं है पैसा कमाने की। लेकिन मेटापोर्स में बहुत कुछ है, कुछ कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जब भी आप लोग मिसाल के तौर पर कोई लेवल परचेज करते हो, मिसाल के तौर पर कोई बंदा है उसने 6 लेवल एक्टिवेट कर दिए, ये आप लोगों के सामने है, अभी प्री लॉन्चिंग चल रही है तो मैं प्री लॉन्चिंग के हिसाब से आप लोगों को गाइड कर दूंगा। ये एक बंदा सिस्टम में आ जाते हैं, उसने 6 लेवल ओपन कर दिए, 6 लेवल पे उसका लग गया $315, $315 से उसके 6 लेवल एक्टिवेट हो गए। अब इस $315 के बदले उसको 315 SFC कॉइन्स मिल गए जो फुरसाज में नहीं है। मेटापोर्स में ये SFC कॉइन्स आप लोगों को मिलते हैं। अब लोग कहते हैं इस कॉइन्स का आप लोगों ने करना क्या है, तो प्यारे भाई ये हमारा जो सिस्टम है ये कोई छोटा सा सिस्टम नहीं है, ये तकरीबन 14-15 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ मिलके मर्ज हो गए और इस तरीके से बारी बारी सब ने लॉन्च होना है। अभी प्री लॉन्चिंग चल रही है मेटापोर्स क्लासिक की, ठीक है। इसके बाद अभी NFTs आएगा, तो जैसे ही NFTs आएगा उसके साथ हमारे पोर्स के प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे। ये SFC कॉइन से हम क्या करेंगे, कोई ना कोई मेटापोर्स के जो डिजिटल प्रोजेक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स है वो सारे हम यहाँ से परचेज करेंगे। उसको परचेज करने के बाद हम उसको लिस्ट करेंगे, लिस्ट करने के बाद हम उसको सेल करेंगे। एक हमने नेटवर्किंग से पैसा कमाना है यहाँ पे, एक हमने टीम वर्क से पैसा कमाना है, एक हमने ये जो टोकन हमें मिलते हैं उससे हमने पोर्स के प्रोडक्ट खरीदने हैं और उसको बाय सेल करके उससे भी पैसा कमाना है। NFTs आए हैं, NFTs से हमें रॉयल्टी बोनस मिलेंगे, उससे अलग से हमें पैसा कमाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे गेमिंग, गेमिंग का भी एक सिलसिला है, उससे भी हम पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग क्लब, यहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, नेटवर्किंग के साथ साथ आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग मेटापोर्स का रोड मैप देख लो तो रोड मैप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की सोच से भी हटके है यहाँ पे। मतलब अगर कोई भी बंदा डिसेंट्रलाइजेशन को समझ सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो होती है वो लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम होता है, सेफ एंड सिक्योर होता है, उसमें कोई स्कैम का खतरा नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा मेटापोर्स जैसे सिस्टम को मिस करेगा। क्योंकि यहाँ पे जागते सोते आप लोग पैसा कमा सकते हो, नेटवर्किंग करोगे पैसा कमाओगे, टीम वर्क करोगे पैसा कमाओगे, NFT से अलग आप लोग पैसा कमाओगे, जो रॉयल्टी बोनस आप लोगों को मिलेगा।
ठीक हो गया। फिर आगे इसके फोर्स कॉइन भी आने हैं, फोर्स कॉइन से आप लोग अलग से पैसा कमाओगे। तो ये चीजें हैं कि आप लोगों ने, अगर ये जो मैंने आप लोगों को बातें बताई है, अगर ये आप लोगों के जहन में बैठ जाती है तो कोई भी बंदा मेटापोर्स को आज के बाद गलत नहीं कहेगा। जितने भी फोर्साज के लीडर्स अगर आप लोगों को ये बात बताते हैं कि भाई वो मिस्टर लाडो ने अपने फायदे के लिए इस सिस्टम को बनाया है, तो आप लोग लाजिम इस वीडियो को उनके सामने शेयर करें, कि वो इस वीडियो को एक मर्तबा देखें, कि उनकी जितनी भी गलत फहमियां हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे इस वीडियो के साथ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास बेसिकली नॉलेज नहीं है। अगर वो इस सिस्टम को तरीके से स्टडी कर लेंगे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता वो भी फुर्सत छोड़ के कहेंगे नहीं हमने मेटापोर्स पे जाना है, क्योंकि ये एक जबरदस्त सिस्टम है। वेब 3 का पहला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप लोग आगे देख लो, जैसे एनएफटीज प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा, फिर पोर्स कॉइन लॉन्च हो जाएगा, फिर इसका आगे बूस्ट लॉन्च हो जाएगा, पता नहीं यहाँ पे कितने सारे लोग आएंगे। और सिस्टम के पावर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो सिस्टम को आए हुए 45-46 दिन हो गए। 45-46 दिन के अंदर इस सिस्टम में तकरीबन 3.5 लाख लोगों ने अकाउंट लगा दिया। और फुरसाज BUSD को साल से ऊपर हो गया, मतलब 1.5 साल 2 साल होने को है। 2 साल में फुरसाज BUSD में अभी 6-6.5 लाख बंदों ने भी अकाउंट नहीं लगाया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 45 दिन के अंदर 3.5 लाख लोगों ने अकाउंट लगा दिया। चलो मान लेते हैं, हम पाकिस्तानियों के साथ दिमाग ही नहीं है, हम पाकिस्तानियों के पास इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बाहर मुल्कों के लोगों का आपको पता है, वो हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से तहकीक करते हैं, तस्दीक करते हैं। तो वो क्या पागल है जो स्कैम कर रहा है मिस्टर लाडो? तो वो क्या पागल है जो इस सिस्टम में इतना सारा पैसा उन लोगों ने अपना इन्वेस्ट कर दिया, और वो टीम पे टीम बना के यहाँ इस सिस्टम पे लेके आ रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी, मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अगर किसी की दिल आज़ारी हो गई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए आप लोगों के सामने ये बातें शेयर की है क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेटाफोर्स को समझते नहीं है, समझे नहीं है, और वो इस तरीके से गलत गलत खबरें फैला रहे हैं कि मेटाफोर्स जो है वो मिस्टर लाडो ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी बंदा इस वीडियो को देख लेगा, वो आज के बाद कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेटाफोर्स मिस्टर लाडो ने अपने फायदे के लिए बनाया है। बेसिकली मेटाफोर्स मिस्टर लाडो ने कम्युनिटी के फायदे के लिए बनाया है। वो कम्युनिटी जो नेटवर्कर हो, वो कम्युनिटी जो फुरसाज कम्युनिटी के साथ लॉयल हो, उनको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है आगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।